chapter that is in front of you is chapter for psychological disorders. इसमें multiple things that you have to study, like abnormal behavior, factors underlying abnormal behavior, or different modes of abnormal behavior. Major psychological disorders कौन से exist कर रहे हैं. The chapter starts with the introduction of it. It's the fourth chapter of a psychological book and holds a good enough weightage. स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? स्टार्ट आपका इंट्रोडक्शन से हो रहा है. इंट्रोडक्शन में वो बता रहे हैं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे हु आर अनहैप्पी, हु आर ट्रबल्ड, हु आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ. They feel that life is painful, there's struggle, there's something that's not worth living. फेमस एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट है कार्ल जंग, जिनके बारे में आपने 11th में और अभी भी पढ़ा है. He remarkably said, "How can I be substantial without casting a shadow? I must have a dark side too. If I am to be a whole by becoming conscious of my shadow, I I remember once more that I am a human being like any another." At times, some of you must have felt nervous. The point is that the life is not all the flowers and all. हमेशा पॉजिटिव इमोशंस डोमिनेट नहीं कर रहे होते हैं. देयर इज ऑलवेज अ शैडो जो आपके साथ चल रही होती है, दैट यू कॉन्शियस और नॉट कॉन्शियस अबाउट. तो देयर आर ऑलवेज नेगेटिव इमोशंस जो आपके दिमाग में होते हैं. बट जस्ट हैविंग अ नेगेटिव इमोशन डज नॉट मीन आपको डिसऑर्डर है. जस्ट बिकॉज आपको एग्जाम की टेंशन हो रही है डज नॉट मीन आपको डिसऑर्डर है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कंबाइन एंड मेक अ मेजर प्रॉब्लम एट अ लाइफ. Now, getting to it, all of us face major problems at some point of our life. However, some people have an extreme reaction to the problem and stresses of life. In this chapter, we will try to understand what goes wrong when people develop psychological problems. कि psychological problems क्यों develop होती हैं, causes क्या हैं, factors कौन से जिसकी वजह से abnormal behavior आ रहा है, signs कौन से हैं, symptoms कौन से हैं, different types of psychological disorders कौन से हैं. The study of psychological disorders has intrigued and mystified all culture for more than 2,500 years. Psychological disorders or mental disorders, as they're commonly referred to, like anything unusual way, makes us uncomfortable and even a little frightened. देखो, in class 12th, you must have come कि हाँ psychology पढ़ेंगे तो psychological disorders पढ़ेंगे. The amount of knowledge that you have from psychological disorders is probably from those movies. बट कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज समथिंग दैट सुनने से भी वी आर फ्राइटेंड एंड अनकंफर्टेबल अबाउट. अनहैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट, एंग्जाइटी, अनरियलाइज्ड पोटेंशियल आर सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये फेलियर इन लिविंग आर मेनली ड्यू टू फेलियर इन अडेप्शन टू लाइफ. देखो, थोड़ा सा कनेक्ट करना. कैसे कनेक्ट करना? आपने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ी है. इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में आपने कहा कि भैया हाँ ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं. तो देयर वाज अ डेफिनेशन जिसमें कह रहे हैं दैट अ पर्सन हु कैन अडेप्ट टू हिज एनवायरनमेंट एंड एक्टिवली मॉडिफाई इट. अगर आप अपनी लाइफ से अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइफ जो चैलेंजेस आपको दे रही है आप उससे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके फेलियर से, when you're unable to adapt to it, the multiple problems that come into the picture, वो कौन सी problems है, that we're going to study in this chapter. As you must have read in previous chapter, adaptation refers to person's ability to modify her or his behavior in response to changing environmental requirements. जैसे जैसे environment की requirement change हो रही है, जैसे जैसे environment change हो रहा है, जैसे आपकी surroundings change हो रही हैं. Look, there's nothing static. There's nothing like कि हाँ अब आप स्कूल में हैं तो life is good. You might go to college, life might not be good. Environment change हो गया. क्या आप उससे adapt कर पा रहे हैं? When the behavior cannot be modified according to the needs of the situation, it is said to be maladaptive. जब situation की वजह से आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पा रहे हो, व्हेन यू आर अनेबल टू अडेप्ट. देखो, अडेप्टिव के साथ मैल लगा है. मैल मीन्स बैड. आप आगे पढ़ने में वाले हैं इसको. तो मैल अडेप्टिव कब हो जाता है? व्हेन यू आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट. एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द एरिया विद इन साइकोलॉजी दैट इज फोकस ऑन मैल अडेप्टिव बिहेवियर. मैल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी सम पार्ट्स ऑफ मैल अडेप्टिव बिहेवियर एंड ऑल. एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कुछ पार्ट हम पढ़ने पा रहे हैं, बट दिस चैप्टर इज नॉट जस्ट अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी, दो क्लियरली सेंटर्ड अराउंड इट. तो ऑफिशियली अगर हम स्टार्ट चैप्टर करें तो द कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. बुक से पढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कि इसमें है क्या. इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि एबनॉर्मैलिटी की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि सबने जो एक्सेप्ट कर लिया. मेरे लिए शायद एक जॉइंट फैमिली में रहना नॉर्मल है, आपके लिए ना हो, या फिर आपके लिए नॉर्मल है मेरे लिए ना हो. समथिंग दैट इज नॉर्मल फॉर यू माइट बी एन एबनॉर्मैलिटी फॉर मी. स्टडिंग 12 आवर्स माइट बी नॉर्मल फॉर मी, इट माइट बी एबनॉर्मैलिटी टू यू. तो एबनॉर्मैलिटी की कोई ऐसी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है. पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट इट. बट 4 डीज हैं. देयर आर 4 डीज जो आपको हर एबनॉर्मैलिटी की डेफिनेशन में मिल जाएंगे.
या फिर ऐसे 4 डीज़ हैं जो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, अगर ये 4 डीज़ कहीं न कहीं आपकी एब्नॉर्मैलिटी से रिलेटेड हैं, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? Although many definitions of abnormality has been used over the years, none has won universal acceptance. Still, most of the definitions have certain common features, जिसको आप 4 Ds कह रहे हो: deviance, distress, dysfunction and danger. Let me give you. पढ़ने से पहले let me give you a view. डिवियंस क्या है? मैं कह रही हूँ सीधे जाओ, अगर आप टेढ़े चले गए तो मैं कह रही हूँ डिवियंस है, आप डिविएट कर गए। द एरो डिविएटेड फ्रॉम इट्स पॉइंट, डिविएट कर जाना। जो जिस आप कह सकते हो एक्सट्रीम, अनयूजुअल या बिजार वे से आप बिहेव कर रहे हो। अगर मैं कह रही हूँ कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है और आप जाके सोशियोलॉजी पढ़ने बैठ गए हो, तो आई एम सेइंग दैट इट्स डिवियंस। नाउ इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर मैं कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, तो what is normal for us is to work, is to do a job, या फिर आपको अपना to stay in an environment, या फिर to have be social with somebody, right? So being social with somebody, social connections बनाना is normal for us. A person who is not making social connections, जो anti social है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है, now it's not just about being introvert, introvert से हट जाइए। जो किसी से बात नहीं कर रहा है, अगर वो किसी से बात कर रहा है तो his hands are shaking, he is unable to talk to about it, he might be even getting a panic attack. दैट इज डिवियंस। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज, देखो आप कहते हो ना मुझे एग्जाम का स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस को थोड़ा और ऊपर ले जाओ, डिस्ट्रेस। हाउ एग्जैक्टली? दैट when you're so stressed about what is happening around you, that is distress. When you're distressed about the life, the way life is going, you're distressed about it, और जब वो डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी डेली लाइफ के फंक्शंस हिंडर हो रहे हैं, देन एबनॉर्मैलिटी एग्जिस्ट कर रही है। डिसफंक्शन, आप फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, आपने डेली फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, यू नॉट फंक्शनल एनी मोर। आपकी एक कंस्ट्रक्टिव डे बनाना या फिर अपनी डेली एक्टिविटीज कर पाना, यू नॉट इवन एबल टू डू दैट, देन दिस डिसफंक्शन। उसके बाद डेंजर आ रहा है। दिस इज दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डिविएंट। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? द पर्सन हु इज हैविंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डिविएंट। डिविएंट कैसे? मतलब डिफरेंट होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, बिजार होते हैं। हम कहते हैं ना, हर एक्शंस आर बिजार, जो वो करते हैं वो बड़े बिजार है, इट्स वेरी डिविएंट, इट्स वेरी अनयूजुअल, इट्स वेरी एक्सट्रीम। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग में क्या है आपके पास? अनप्लीजेंट, अपसेटिंग टू द पर्सन एंड द अदर। देखो, डिस्ट्रेसिंग इज नॉट जस्ट टू योर सेल्फ। आप कह सकते हो कि आपको एडी, अज्यूमिंग नाउ यू हैव एन रेफरेंस टू एडीएचडी, आपने 11th में पढ़ा था, बट अभी बताओ इट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है? Now, a person with ADHD or dyslexia, or assuming a person has a neurodevelopmental disorder, it is upsetting and unpleasant to him also, but also to the person around him, all the people associated with them. डिस्ट्रेसिंग है, अनप्लीजेंट है, अपसेटिंग है, आपके लिए भी और आपके साथ जो लोग हैं उनके लिए भी। डिसफंक्शनल, आपकी जो एबिलिटी है अपनी डेली एक्टिविटीज को कैरी आउट करने की कंस्ट्रक्टिव वे में, जब आप वो नहीं कर पाते हो, जब उसके साथ इंटरफेरेंस हो जाती है, तो दैट इज डिसफंक्शनल एंड पॉसिबली डेंजरस टू द पर्सन एंड अदर। दैट डिसऑर्डर इज डेंजरस टू यू एंड अदर। कैसे? मान लेते हैं आपको एमनीशिया है, या फिर आपको डिसोशिएटिव फ्यूज है, या फिर अच्छा, यू डोंट नो व्हाट इट इज डिसोशिएटिव फ्यूज येट, यू विल गेट टू नो इट, बट अज्यूम करते हैं कि आपको कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि आपकी मेमोरी चली जाती है, राइट? तो यू वेक अप वन डे एंड यू लूज योर मेमोरी एंड यू डोंट रिमेंबर हु यू आर, तो उसमें यू माइट बी डेंजरस टू अदर पीपल एंड यू माइट बी डेंजरस टू योर सेल्फ ऑल्सो. This definition is a useful starting point from which we can explore psychological abnormality, since the word abnormal literally means away from normal. देखिए, एबनॉर्मैलिटी का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट इम्प्लाइज डिविएशन फ्रॉम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड। नॉर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, तो हर सोसाइटी के कुछ अनस्टेटेड या स्टेटेड रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। उससे जब आप डिविएट कर रहे हो, जब आप माई स्टैंडर्ड या माई परसेप्शन ऑफ नॉर्मैलिटी से डिविएट कर रहे हो, तो यू आर नॉर्मल। इन साइकोलॉजी वी हैव नो आइडियल मॉडल। देखो, अब नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सोसाइटी के होते हैं, साइकोलॉजी में कोई आइडियल मॉडल या फिर नॉर्मल मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नहीं होता कि हाँ, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो नॉर्मल है। तो we don't have something like normal. Look, what it's trying to say, let me put it in very simple words. सोसाइटी के लिए शायद अगर मान लेते हैं यू आर इन यू आर फैमिली, और यू आर इन सोसाइटी विच इज़ वेरी स्टीरियोटिपिकल, ठीक है? तो अगर आप बाहर जा रहे हो, यू आर अ गर्ल एंड यू आर डूइंग अ जॉब एंड यू आर मेकिंग अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, या फिर यू आर वेयरिंग सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स, दैट इज नॉर्मल फॉर देम,
इसका मतलब ये नहीं है आपको डिसऑर्डर है, उनके लिए वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है। फॉर देम नॉर्मल लाइफ इज गर्ल्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर इफ गर्ल्स स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर देम। तो एबनॉर्मल इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। साइकोलॉजी में कोई हमारा नॉर्मल नहीं है कि कोई, कि ठीक है ये बिहेवियर नॉर्मल है और ये नॉर्मल है। साइकोलॉजी में आप 4 डीज को देख रहे हो, डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर, उनको देख रहे हो। बट व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज दैट बहुत सारे अप्रोचेस हैं जिससे डिस्टिंक्शन बनाया जाता है नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में, कि भैया ये बिहेवियर तो नॉर्मल है और ये बिहेवियर एबनॉर्मल है। फ्रॉम दीज अप्रोचेस देयर इमर्ज टू बेसिक एंड कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू, दो बेसिक और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आते हैं। वे डन विद दिस पेज, वे स्टार्ट विद नेक्स्ट पेज, और उस पेज पे हम पढ़ने वाले हैं कि भैया कैसे दो बेसिक और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, या फिर आप कह सकते हो दो ब्रांचेज हैं, दो आइडियाज हैं अबाउट व्हाट, अबाउट द एबनॉर्मल बिहेवियर, कि भैया क्या नॉर्मल बिहेवियर है, क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है। बट इस पेज में से बताऊं तो आपने दो चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली। सबसे पहले आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया कि 4 डीज होते हैं, डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। फिर आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया कि कोई आइडियल मॉडल या फिर नॉर्मल मॉडल ऑफ बिहेवियर नहीं होता है जिसको आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सको इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमारा कोई नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल मॉडल ऑफ बिहेवियर, आइडियल मॉडल ऑफ बिहेवियर नहीं होता है। दिस इज द टू थिंग्स दैट वर टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पेज। एंड नाउ मूविंग ऑन टू कि आपके पास दो अप्रोचेस कौन सी हैं। अब देखिए, फर्स्ट अप्रोच आपकी इस पैराग्राफ में बता दी गई है और दूसरी अप्रोच आपकी यहाँ मैल अडैप्टिव से स्टार्ट होती है। मैं अगर आपको इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया दूँ, तो इसमें वो क्या रहे हैं, वो सिंपल सी यही बात कह रहे हैं, वो सिंपल सी यही बात कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी आप देखें, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि सोसाइटल नॉर्म्स हैं दैट यू विल गेट मैरिड विद इन दिस कम्युनिटी। अगर आप उस कम्युनिटी से बाहर मैरिज कर लेते हैं देन दैट इज एबनॉर्मल। अगर सोसाइटल नॉर्म है कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को आप नहीं कर सकते, अगर आप वो प्रोफेशन कर रहे हो तो दिस इज अगेन, दैट इज अगेन एबनॉर्मैलिटी फॉर देम। तो सबसे पहली अप्रोच क्या है, सबसे पहली अप्रोच इज अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में है दैट हाउ इट इज अ डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव स्टेटेड दैट एबनॉर्मैलिटी सिंपली क्या है, कि अगर आपका बिहेवियर सोशल एक्सपेक्टेशन से बाहर चला गया तो एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल बिहेवियर जो है, थॉट्स जो हैं, इमोशंस हैं, आर दोज दैट आर डिफरेंट मार्केटली फ्रॉम सोसाइटीज आइडिया ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर सोसाइटी का आइडिया ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग है कि आप जॉब पे जा रहे हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, आप अर्न कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, अगर आप इस आइडिया से बाहर जा रहे हैं तो यूर एबनॉर्मल। हर सोसाइटी के पास एक नॉर्म्स होते हैं। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। देखो बड़ी सिंपल सी लाइन है, ऐसा लग रहा हो ठीक है पढ़ो और आगे चलो, बट द पॉइंट इज इसमें से एक फिल इन द ब्लैंक्स बन के आ गया था। एंड इट वाज लाइक कि ठीक है आपने पढ़ा बट यू नेवर नो कि कहाँ से क्वेश्चन बना है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट हर लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है नॉर्म्स। क्या होते हैं नॉर्म्स, होते हैं स्टेटेड या अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट, कि भैया ये रूल्स हैं, यही प्रॉपर कंडक्ट है। बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन दैट ब्रेक सोसाइटल नॉर्म्स, ऐसे बिहेवियर, ऐसे थॉट्स और ऐसे इमोशन जो इस सोसाइटल नॉर्म को ब्रेक कर रहे हैं, उसको आप क्या कह रहे हो, एबनॉर्मल। और सोसाइटीज नॉर्म्स ग्रो फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर कल्चर। पर्टिकुलर अब कल्चर क्या होगा, उसकी हिस्ट्री, उसके वैल्यूज, उसके इंस्टीट्यूशंस, habits, skills, technology, arts, and the society whose culture values competition and assertiveness may accept aggressive behavior, whereas one that emphasizes cooperative and देखो बड़ी सिंपल सी बात है, उसने एग्जाम्पल में क्या दिया है, हमने कह दिया फर्स्ट अप्रोच में हमने क्या कह दिया कि एबनॉर्मैलिटी क्या है। नॉर्मैलिटी सिंपल सी वो चीज़ है कि जब आप सोसाइटी की नॉर्म से डिविएट हो जाते हो, जब सोसाइटी के पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल से डिविएट हो जाते हो, तो दिस इज एबनॉर्मैलिटी। एबनॉर्मैलिटी, हर सोसाइटी के पास नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स स्टेटेड या अनस्टेटेड रूल होते हैं। अब ये नॉर्म्स कहाँ से आते हैं, ये नॉर्म्स आते हैं पर्टिकुलर कल्चर से। ये नॉर्म्स कहाँ से आ रहे हैं, पर्टिकुलर कल्चर, कल्चर से, उसकी हिस्ट्री से, उसके वैल्यूज से, उसके इंस्टीट्यूशन से। उसने आगे एग्जाम्पल दिया, उसने आगे एग्जाम्पल में क्या कहा है कि एक ऐसी सोसाइटी जो कंपेटिटिवनेस और असर्टिवनेस को वैल्यू कर रही हो, कि भैया ठीक है बी कंपेटिटिव, बी असर्टिव, बी डोमिनेंट, वो एग्रेसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेगी। वेरएज ऐसी सोसाइटी जो कॉपरेशन को प्रमोट कर रही है, जो फैमिली वैल्यूज को प्रमोट कर रही है, उसके लिए एग्रेसिव बिहेवियर नॉर्मल होगा। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल और इवन एबनॉर्मल। एक सोसाइटी की वैल्यूज टाइम के साथ साथ भी चेंज कर जाती हैं, कॉजिंग इट्स व्यू ऑफ व्हाट इज साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल टू चेंज इट्स एज वेल। सीरियस क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड अबाउट दिस डेफिनेशन। इस अप्रोच का इट्स दिस अप्रोच हैज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड दिस अप्रोच हैज अ लॉट ऑफ अपोजिशन ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने तो सिंपल से ये बात कह दी कि भैया कल्चर के अगेंस्ट गए आप या फिर आप नॉर्म्स के अगेंस्ट गए तो आप एबनॉर्मल हो।
बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जस्ट गोइंग अगेंस्ट द कल्चर और द नॉर्म, पहली बात तो ये कल्चर और नॉर्म फिक्स नहीं है, दूसरी बात हर सोसाइटी के साथ ये कल्चर और नॉर्म चेंज करे जा रहे हैं, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। इट्स बेस्ड ऑन द assumption दैट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज नॉट एबनॉर्मल, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है तो भैया नॉर्मल हो, नहीं एक्सेप्ट कर रही तो एबनॉर्मल है। दिस इज based on this one fact, that is conformity to social norms, कि सोसाइटी जो कह रही है, if you are conforming to it, if you're showing conformity to it, then you're normal. If you're not showing conformity to social norms, then you're not normal. Again, there are serious criticism about it, और बड़ी it is not something that is psychological based, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या है? मैल अडेप्टिव, कि ये फ़र्क नहीं पड़ता, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अगर आपकी बिहेवियर, मैल का मतलब देखो नाउ, अभी-अभी मैंने आपको बताया कि मैलाडैप्टिव क्या होता है। आपने देखा कि मैल का मतलब क्या होगा? मैल का मतलब होगा आपका बैड। अब मैल का मतलब है बैड, मैलाडैप्टिव मतलब जब आप अडैप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका बिहेवियर मैलाडैप्टिव है तो आप एबनॉर्मल हो। अगर आपके बिहेवियर से आपको और आपकी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है तब आप एबनॉर्मल हो। अगर आपके बिहेवियर से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपनी वेलबींग को, इफ यू नॉट एबल टू फोस्टर द वेलबींग ऑफ योरसेल्फ, अपने ग्रुप को प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर एबनॉर्मल। Many psychologists believe that the best criteria for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which he or she belongs. इस लाइन में उन्होंने ये कहा है कि आप नॉर्मैलिटी को ऐसे डिफाइन नहीं, या नॉर्मल बिहेवियर को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। नॉर्मल बिहेवियर कौन सा होगा? जब आपकी वेलबींग फॉस्टर हो रही है और इवेंचुअली जिस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हो उसकी वेलबींग फॉस्टर हो रही है। वेलबींग सिंपली मेंटेनेंस नहीं होता, सिर्फ आप जिंदा हो, आप सर्वाइव कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू वेल एंड दैट यू नॉर्मल। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे, अगर आप अपनी फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे, अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे, देखो अब एक्चुअलाइजेशन और पोटेंशियल से कुछ दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि ऐसा सा कोई ट्रायंगल था, कैसा ट्रायंगल था, उसमें आपने मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी आपने की, उसमें आपने पढ़ा कि सबसे अपर मोस्ट आपकी नीड कौन सी थी? नीड क्या थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपनी 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 ग्रोथ और अपनी ग्रुप की ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, देन दिस इज मैलाडैप्टिव। अब इसके हिसाब से कन्फर्मिंग बिहेवियर भी मैलाडैप्टिव है। कन्फर्मिंग बिहेवियर, मैंने कहा वर्क फॉर मी 20 आवर्स, आपने कहा ठीक है। आई सेड वर्क फॉर मी 24 आवर्स, मैंने कहा ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू सैलरी, आपने कहा ठीक है। दिस इज कन्फर्मिंग बिहेवियर। अगर ये कन्फर्मिंग बिहेवियर मैलाडैप्टिव है, आपकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग, देखो अब आपने हाँ तो कह दिया, आप 20 घंटे मेरे लिए काम तो कर रहे हो, बट इवेंचुअली यू आर नॉट हैप्पी विद इट, इवेंचुअली आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपने कह दिया ठीक है सैलरी बाद में दे देना, बट यू आर नॉट हैप्पी विद इट एंड यू आर नॉट ओके विद इट। तो इवन कन्फर्मिंग बिहेवियर भी मैलाडैप्टिव हो सकता है, भी अब नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता है, अगर वो आपकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग और ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम दे रहा हो। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है एक स्टूडेंट का जो क्लास में है, चुप रहता है जब उसको क्वेश्चन पूछना हो तब भी। डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एज मैलाडैप्टिव इम्प्लाइज दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि भैया कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट वनरेबिलिटी इन द इंडिविजुअल, इनएबिलिटी टू कॉप, और या फिर एक्सेप्शनल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है इन द एनवायरमेंट हैज लेड टू प्रॉब्लम्स इन लाइफ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दैट इवन व्हेन यू हैव अ डाउट, अगर आप चुप हो, इवन व्हेन यू हैव अ डाउट, आप पूछ नहीं रहे हो, दिस इज मैलाडैप्टिव। प्रॉब्लम कोई ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, या तो यू आर अनेबल टू कोप अप विद इट, या यू नॉट एबल टू चेंज योर सेल्फ, यू नॉट एबल टू टॉक टू अ टीचर, यू नॉट एक्सेप्शनल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीपल थिंग्स। इफ यू टॉक टू पीपल अबाउट इट, देखो अब हमने दोनों ही अप्रोचेस कर लिए हैं, आगे हम स्टिग्मा पढ़ेंगे कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग लोगों के पास बहुत देयर इज अ स्टिग्मा दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। उससे पहले अगर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूं कि हमने क्या पढ़ा है, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ लिया कि सबसे पहले आपके फर्स्ट अप्रोच में था डीविएशन, सोसाइटी से बाहर गए, सोसाइटी के अगेंस्ट गए, सोसाइटी के नॉर्म के अगेंस्ट गए, आप अब नॉर्मल हो। दूसरे में आपने पढ़ा मैलाडैप्टिव। मैलाडैप्टिव में आपने सिंपल सी क्या बात पढ़ी? मैडम ने पढ़ा कि अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके बिहेवियर की वजह से आपको खुद को ही प्रॉब्लम हो रही है, आपके ग्रुप ग्रो नहीं कर पा रहा है, आप फॉस्टर नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, यू नॉट एबल टू ग्रो एंड फोस्टर योर सेल्फ, तो मैलाडैप्टिव है। ठीक है, तो दो आपकी अप्रोचेज आ गई अपॉन व्हाट इज अब नॉर्मल बिहेवियर। इसके बाद आता है हमारे पास स्टिग्मा पे। अब ये क्या है?
इस पैराग्राफ में आपको बता रखा है कि कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोसाइटी में एक स्टिग्मा एग्जिस्ट कर रहा है। टॉक टू पीपल अराउंड यू सी दैट देयर इज अ वेग आइडिया अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में एक वेग आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस, फियर। सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस और फियर। पीपल हैव अ सुपरस्टिशन कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो उसका दिमाग खराब है, या वो पागल है, या ऐसी ऐसी फेमस स्टेटमेंट चल रही होती है विच इज एब्सोल्युटली बेसलेस एंड रॉन्ग। इग्नोरेंस, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है। एंड फियर, फियर की एज यू सी इन मूवीज दैट he'll go to a psychologist, he'll put you on wire and he'll electrocute you. Not. Again, it is commonly believed that psychological disorder is something to be ashamed of. ये भी है कि अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, या फिर अगर आप डिप्रेशन में है, दिस इज समथिंग यू शुड बी अशेम्ड ऑफ। स्टिग्मा अटैच कर दिया गया है मेंटल इलनेस के बारे में। आप बता नहीं सकते हो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस। पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, यूर दे आर अशेम्ड ऑफ इट। एक्चुअली होना क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ऐसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इंडिकेट्स अ फेलियर इन एडेप्टेशन शुड बी व्यूड एज एनी अदर इलनेस। जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कोई और बीमारी है, ऐसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर देना चाहिए। So this is it. From the next video we'll start the टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने देखा कि कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, आपने 4 डीज पढ़े, डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। जहाँ पे 4 डीज मिल जाए आप नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन बना सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई साइकोलॉजी में कोई आइडल मॉडल या नॉर्मल मॉडल नहीं होता है बिहेवियर का। आपने दो ब्रांचेस कह सकते हो, अप्रोच कह सकते हो नॉर्मल बिहेवियर को लेकर। सबसे पहले अप्रोच में हमने कहा कि अगर सोशल नॉर्म से डिवीट कर गए हो, दैट डिविएशन इज अब नॉर्मल, जस्ट दिस डिविएशन ही बहुत है, तो आप नॉर्मल हो। सेकेंड अप्रोच में कहा कि भैया डिविएशन का कुछ यहाँ पर है नहीं, अगर मैल अडेप्टिव है, अगर आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने एनवायरमेंट से, अगर आप खुद अपनी डेवलपमेंट को फोस्टर नहीं कर पा रहे हो, या फिर यू आर नॉट एबल टू ग्रो एंड इवेंचुअली द ग्रुप इज नॉट एबल टू ग्रो, देन दिस इज मैलअडेप्टिव। उसके बाद आपने देखा कि कैसे स्टिग्मा अटैच्ड है टू द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंड दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर लुक्स लाइक। आपने पढ़ लिया है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होती है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी लर्निंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।